Is my image coming correctly or it's coming as a flip? Just give me a moment, sir. All good, all good. Actually, we are live. We're good to go. Yeah. Okay. Okay. Hello, book nerds, and everybody who's watching this. Even if you don't read books, you must be aware about the man on my left or right, depends upon your perspective. So, this is the book we are going to talk about. And of course, I have with me the Hindi version as well. So, yeah, we have with us the Mr. Devdutt Patnaik, the mythology guru. And for all of us millennials, it's great to read your books because it gives us perspective, first of all, and that's needed a lot in this day and age. Thank you. A lot of us have been, brought up without proper kind of guidance how to study mythology actually, it's something which was never addressed. Yes. So as to say, so what do you have to say about that and about this book a little bit, and then we'll delve further. So, see, mythology as a subject is taught mostly in Western universities. So you can study as part of anthropology, sociology, psychoanalysts read it, literary criticism reads it, philosophy students read it. But there is no, it's part of religious studies. But now people more and more are realizing, that mythology is something that is part of every society. You can't in the 19th century, they would say that this is for savage people, primitive people, less evolved people. That's a 19th century idea. In the 20th century, it became, the world of psychoanalysis, Freud and Jung and archetypes, and people started seeing it as, unconscious mind and all those kind of things were coming. But now we are realizing that society cannot live without ideas. And ideas are not rational, they're emotional, and societies are bound together by all kinds of thoughts and ideas. And that is where mythology comes in. So mythology sort of basically helps us understand how different cultures think. And the study involves only 3 subjects. You have to read stories, symbols, and rituals. Okay. 3 things you have to study, and that's what I do. So now everybody thinks only of Ramayana and Mahabharata. That's a very small portion of mythology. You have to also study rituals, practices, even a birthday. When you celebrate a birthday, for me, that is a subject to study. We didn't celebrate birthdays in India, say 100 years ago. We celebrated it very differently. So like that. And then that led me to write these essays, which is now part of the book, because these concepts like dharma, artha, kama, moksha keeps coming again and again in Indian studies. And I thought people need to know what is this. Because everybody seems to make it like dharma is very complicated. And I'm like, no, it's not complicated. You are complicated. Dharma is not complicated. And artha, we don't talk about economics and politics. We just think of Chanakya and artha. We talk of Kama Sutra, when we get very embarrassed. Oh my God, Kama Sutra. Not realizing that Natya Shastra also comes in it. All forms of aesthetic things comes in it. India's design sensibility, aesthetics comes there. And then moksha, everybody talks of Vedanta, but there's yoga, there's tantra, there's so many other things that need to explain. That's part of our, and I thought it's a good framework. Right. It was a 2,000-year-old framework. It's not a new idea. This 4 ideas are 2,000 years old. Sir, Hindi wale version mein, especially I was reading that you have mentioned that dharm जहाँ हम दूसरों के उपभोग के लिए उन्हें मूल्य देते हैं, अर्थ जहाँ हम मूल्य निर्माण करते हैं, काम जहाँ हम मूल्य का आनंद उठाते हैं, और मोक्ष जहाँ हम मूल्य के उपभोग की आवश्यकता से परे जाते हैं. So this is like, very simple on a level, but to understand it, one has to kind of, so can you tell us a bit about? See, when I was reading about dharma, artha, kama, moksha, I always say a framework must be complete in itself, an idea. They don't exist in discrete units. It's like jigsaw puzzle में जैसे आप चीजों को जोड़ते हो, एक मसाला साथ में काम करता है. So dharma is, so when I was reading अर्थशास्त्र, I realized वो ज़्यादातर धन और पावर की प्राप्ति के बारे में करता है. So for example, you and I, we have to have a job, we have to have a business, we have to earn money.
वी हैव टू सर्वाइव इन सोसाइटी. जस्ट जीने के लिए आपको गुड्स बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज बनाने पड़ेंगे. यू हैव टू क्रिएट वैल्यू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सोसाइटी. तो वो अर्थ हो जाता है. अभी उसका जब मैं भोग लेता हूँ, so you have used your money and you're enjoying it, you're going to a party, you are buying your house, you are decorating things, कपड़े खरीद रहे हो, restaurants जा रहे हो, तो काम आ गया. Yeah. You know, then it's you're thinking of yourself, and this every living creature will do. They will generate wealth, and either they will generate or they will inherit it from someone, and they will enjoy it. But ये दोनों शब्द से धर्म नहीं बनता. धर्म is where you are, and very clearly Manusmriti is very clear, is where you generate food for others. Okay. दूसरों के लिए. तो हमेशा वेदों में कहेंगे कि इनके घर में 3 अग्नि होते हैं. 3 अग्नि का मतलब है अपने, एक अग्नि अपने घर के लिए, चूल्हा जो जलता है हमारे घर में. दूसरा अग्नि होता है पितरों के लिए, जो ancestors. And third अग्नि is for देवता. देवता is plants, animals, everything. So that becomes, dharma. Dharma is that. मोक्ष in Indian, in fact Indian philosophy में मोक्ष बहुत बाद में आता है. It's not an important thing, because बोलते थे कि अगर तुमने धर्म कर लिया है तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा. अपने आप मोक्ष हो जाएगा, because तुम ऋण से मुक्त हो जाते हो, और ऋण से जब मुक्त होते हो तो फ्री हो जाते हो. When you're free of debt, you are out. You're finished. And but मोक्ष का आइडिया बहुत फेमस हो जाता है because of Buddhism and Jainism. And then मोक्ष then becomes कि देखो, तो ये भूख जो है ना, जो तुम्हें बांध के रखता है, इससे तुम अगर you can break free from it, फिर आप फ्री हो जाओगे, जीव मुक्त हो जाओगे. You will enjoy life. You will be a very different person, because ना तुम्हें धन धान्य की आवश्यकता है, ना शक्ति की आवश्यकता है. That's a liberation at a different level. तो मोक्ष वहां आ जाता है. So that is how. So पूरी जिंदगी का एक सारांश इस 4 शब्दों में मिल जाता है. You can teach a child that. You go to school, क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए, बिजनेस कर लिए, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, बट सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है. वो सोचते हो कि धर्म नहीं कर रहे हो. और सब की देखो, ये सब माया है. बियॉन्ड अ पॉइंट, डोंट गेट टू अटैच्ड टू इट. डोंट बी फुलिश कि ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन तुम चले जाओगे, दुनिया को नहीं परवाह है इसके बारे में. And you have also mentioned in the expiry date chapter about this, but before that, you have mentioned on page 7 that right now, especially, everybody, it's all about on Twitter, everywhere, it's about Hindus are being, threatened. So, what is that? I mean, तो ये आइडिया इमर्जेस. अगर आप किसी लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो ना, तो अभी किसी को दौड़ाना चाहते हो, you want someone to run. There are 2 ways to make a person run. One is called कि देखो, you have something, बहुत ही exciting चीज जो तुम्हारे है वो आगे है. Right. No? So then you need motivation कि अरे उसके पीछे मुझे दौड़ना है. Like तुम्हें भूख लगी है, और मैं like शेर जो है वो हिरन के पीछे दौड़ रहा है. Yes. So then I see तुम शेर हो और मैं बोलता हूँ हिरन के पीछे दौड़ो, do something in life, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं. लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर आपको जागृत करना है ना, तो आप बोलोगे देखो तू हिरन है और तुम्हारे पीछे एक शेर लगा हुआ है. एंड दैट इज अ वेरी प्राइमल फियर, बहुत ही बेसिक फियर है. तो हिंदुत्व की जो पॉलिटिशियंस है वो हमेशा कहेंगे, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम 20, 30, 40 years, they would say देवदत्त, our society is under threat. And like, society is never under threat. आते हैं आइडियाज, जाते हैं, and it is like external versus internal threat. Viruses enter your body. आजकल वायरस के बारे में, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, राइट, तो इम्यून सिस्टम को अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे या कर पाओगे, तो चांसेस ऑफ एक्सटर्नल, हम खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, पेट खराब हो जाता है. कुछ लोगों का पेट खराब नहीं होता बिकॉज देयर बूस्ट इम्यून सिस्टम इज वेरी गुड. वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट उनका अच्छा है, प्राणायाम करते हैं, तो शरीर को हम स्ट्रॉन्ग, मजबूत करते हैं, ताकि बाहर से जो भी आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे. तो माय थीसिस हैज ऑलवेज बीन कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करो. लेकिन वो ना, उसमें बहुत काम करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, डाइट मैनेज करना पड़ता है. इजी क्या है, एक दवाई ले लो. Right. और ब्लेम अदर पीपल. हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाओ कि बोलो कि डॉक्टर आप कुछ करो मेरे लिए, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं डाइट नहीं मैनेज कर सकता, आप कुछ दवाई दे दो. पीपल वांट दिस एक्सटर्नल सॉल्यूशंस. तो ये जो हिंदू खतरे में है वो वहीं से आता है कि देखो
सब आपके बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड आई एम लाइक, इतिहास हैज नेवर बीन दैट, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। अब देखो फेमिनिस्ट में भी होगा कि ऑल मेन आर ट्राइंग टू अब्यूज यू, बट ऑफ कोर्स देयर इज हमारे देश में फेमिनिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट, बट द होल आइडिया दैट मेन आर इवल, या फिर वो जो क्वियर लॉबी में होगा कि सब स्ट्रेट लोग बोरे होते हैं, तो ये एक मॉडल है। तो आप मार्क्सिस्ट बोलेंगे कि जो अमीर है सब चोर है। तो एक एनिमी क्रिएट करो। तो वन ऑफ द रूल वन ऑफ पॉलिटिक्स इज एनिमी क्रिएट करो। और ये एनिमी है कि देखो हिंदू खतरे में है, तो वो फट करके चलता है, इमीडिएटली इट राइजेस। सो भाई बहन में मंथरा करती है ये। तो ये मंथरा जो स्वभाव जो है वो पॉलिटिशियंस में बहुत सक्सेसफुल है, और हम कई बन जाते हैं ना, हम लोग सब घर तोड़ देते हैं। Yes, it's their USP. In Yagna of Business, you have mentioned, you have like quoted like parallels to business from mythology a lot in the book and in all the essays almost. And you talk about the fear in corporates. Would you like to elaborate on that? So, see, when we are talking about, when people will talk about business and economics, तो अगर पहले तो मुझे लोग बोलेंगे कि देखो तुम मिथोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स बात कर रहे हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो हमारे शास्त्रों में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी इज वेल्थ, तो स्टडी ऑफ लक्ष्मी इज इकोनॉमिक्स। हम दुर्गा की पूजा करते हैं, विच इज पावर, शक्ति, और उसकी जब स्टडी करते हो तो पॉलिटिक्स हो गया। सरस्वती के बारे में पढ़ रहे हो तो फिर साइंस आ गया, फिलोसफी आ गया, तो सब कुछ है इसमें। अभी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? गूगल करोगे, गूगल करके इकोनॉमिक्स कहेगा कि इकोनॉमिक्स इज यूजिंग व्हाट यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट। तुम्हारे पास जो है उसका तुम इस्तेमाल करते हो ताकि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। यू गिव एंड यू गेट। और जब मैंने ये डेफिनेशन सुना, मैं बोला ये तो यज्ञ है। यज्ञ में आप यजमान देवता को कुछ देता है, स्वाहा, भोग चढ़ाता है ताकि उसे प्रसाद मिले, तथास्तु। तो इट्स अ वेरी क्लियर। और लोग बोलते थे यज्ञ इज अ मैजिकल रिचुअल में, ये हर चीज को मैजिक बना देते हैं। धर्म को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आत्मा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डायमेंशंस, ये सब ऐसे। इट इज नाइस इफ यू आर डूइंग सम मैजिक शो। मैजिक शो में अच्छा लगता है कपड़े डाल के, बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इज वेरी सिंपल। और आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट लाइक सिंपल थिंग्स, दे लाइक ड्रामा। ऐसे ड्रामा होना चाहिए। A lot of people sir are loving fantasy books right now, and वो अच्छा लगता है ना कि वो ऐसे गुरुजी उड़ के आ गए हमारे पास, समाधि लेने के लिए उड़ रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लाइफ धर्म अर्थ काम वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। भैया पैसे कमाना है, पैसे एंजॉय करना है, दूसरों को भी पैसे दो और पैसे के लोभ और माया से मुक्त हो जाओ। सिंपल है। तो यज्ञ इज दैट। यज्ञ मनुष्य ही यज्ञ कर सकता है, बिकॉज एक्सचेंज। When I spoke to economists, they said that human civilization is based on exchange and trade. लेन देन की बात है। फिर मैंने वो फेमस बुक पढ़ा था, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, आप पढ़े होंगे कभी, पेरेंट, चाइल्ड, एडल्ट। एंड हर रिलेशनशिप में मैंने देखा हम लेन देन की बात करते हैं। फिर हमारे शास्त्रों में बोलेंगे कि तुम ऋणी हो, तुम ऋण है, तुम्हारा पितृ ऋण है, तुम्हारा देव ऋण है, तेरा गुरु ऋण इज डेट। डेट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो क्लियरली ऋण इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जब मैं लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, अरे ऋण का कॉन्सेप्ट भूल गए तुम? तो ये तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। In fact, sorry to cut you off. In fact, I was surprised the kind of genres that were in the book within the sort of mythology genre. I was quite surprised. And on page 42, you mentioned the idea of the independent woman as someone to be feared continues to this date. We can see clearly on the internet how single women are targeted by trolls. I mean, the idea of free women, who can express themselves, kind of scares us. Is this new or what's happening? When you read the Buddhist literature से शुरू करके जब आप ऋग्वेद में भी पढ़ोगे, वहां there is reference to women who are free and single. उनको अप्सरा शब्द पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, मैं जा रही हूँ। तो ये आइडिया जहाँ पे एक स्त्री अपना ही डिसीजन ले सकती है, मेक्स हर ओन चॉइसेस, मेक्स हर ओन, लिव्स हर ओन लाइफ, ये आई थिंक मेनी मेन फाइंड इट वेरी डिप्रेसिंग। उन्हें लगता है कि स्वयंवर में मुझे कोई चुनेगा नहीं। तो चुनेगा नहीं, इसलिए उनको अरेंज मैरिज पसंद है, लव मैरिज पसंद नहीं, क्योंकि वो
चुनने लायक ही नहीं है शायद उनके दिमाग में कि स्वयंवर में मुझे कोई नहीं सिलेक्ट करेगा तो मैं राक्षस विवाह करूंगा, मैं असुर विवाह करूंगा, अलग अलग प्रकार के पिशाच विवाह करूंगा, पिशाच विवाह लाइक sexually abusing women, abducting them, cheating them, all kinds of crazy things that people do. Yeah. But and the idea of a woman being independent, हम जैसे पहले जमाने में जो नटी होते थे, they were singers and dancers. देखो इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स चाहिए ना, you need some source of income. कहाँ से पैसे आएंगे? Women were not, प्रॉपर्टी नहीं था उनका, कुछ नहीं था, तो जो नाचते थे गाते थे they were providing services और उनके पास फ्रीडम होता था, उनको पैसे मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें शादी करना नहीं है, हमारे लवर्स होंगे, हमारे प्रेमी होंगे. तो जैसे हम आम्रपाली के बारे में सुनते हैं, बस बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको हम गणिका कहते हैं, जो फ्री विमेन थे, जो अपने आप जीते थे, दे हैड चिल्ड्रन. जैसे तमिल लिटरेचर में भी बहुत मिलता है ये स्टोरीज. लेकिन हमने उनको वैश्या का दर्जा दे दिया 19th सेंचुरी में. तवायफ, ये गंदी औरतें हैं, ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. व्हेन ब्रिटिश यूरोपियंस कम, वो उनको गंदी नजरों से देखा जाता है, बेसिकली बिकॉज अभी देखिए ना, अगर हम बोलेंगे कि नाट्य शास्त्र का निर्माण किसने किया, वी विल थिंक ऑफ मेल नेम्स, वी डोंट रियलाइज 90% मंदिरों में म्यूजिक इज ऑलवेज विद विमेन, डांसिंग इज ऑलवेज विद विमेन. लेकिन अभी भी सब पुरुषों ने ले लिया है उनका, व्हाटएवर दे क्रिएटेड, उनका पूरा म्यूजिकल जॉनर हम भूल गए. नटियों को, तवायफों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एक जमाना जो पहले ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब तो तवायफों ने किया था. बॉलीवुड के पहले एक्टर्स जो थे वो तवायफों ने पार्टिसिपेट किया, उनके बच्चे पार्टिसिपेट किया. अभी वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड ऐसे इतिहास को, और इसको हम नहीं कहते हैं कि इतिहास खतरे में है. Good one, goodness. So right now, even on YouTube, when I go, there are lots of videos, promoting celibacy, and it's supposedly it is social work, and if you do it, you'll attain, the said kind of popular definition of moksha and stuff like that. What's going on? इसका कोई प्रमाण नहीं है. अगर कोई कहे कि मैं सेलिब्रेट हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, इसका मैथमेटिकल एविडेंस तो नहीं है ना. 24/7 हम थोड़ी ना उसको देखते हैं. Obviously. तो पहले तो देयर इज नो प्रूफ दैट यू आर सेलिब्रेट, देयर इज नो वे टू प्रूव. वो एक अजम्पशन है, एक प्योर अजम्पशन है कि मैं सेक्स नहीं करता. आप बाथरूम में क्या करते हैं हमको थोड़ी ना पता. आप तो ये तो पहली बात है कि देयर इज नो प्रूफ दैट एनीबॉडी. सेकेंडली, semen in case of men is an excretory organ. Excretory fluid, वो निकल जाता है अपने आप. तो ये प्लेजर से डरना इज अ वेरी कॉमन थिंग. ये शुरुआत होती है जैसे बुद्ध ने कहा कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग. भोग से दुख होता है तो भोग मत करो. मोक्ष की शुरुआत वहां से होती है कि भोग दुख देता है तो योग करो. भोग और योग को हमने विपरीत माना है, लेकिन हमारे यहाँ शिवजी जो योगी हैं वो शादी करके भोगी बन जाते हैं. राइट. बुद्ध एक राजा होते हैं जो भोगी हैं, जो योगी बन जाते हैं. तो योगी भी भोगी बनता है, भोगी भी योगी बनता है. अगर आप मंदिरों में जाओ तो श्री कृष्ण को हम अलंकार प्रिया कहते हैं. यू पुट ज्वेलरी ऑन हिम. उनके पास ब्यूटीफुल ड्रेस डालते हैं, फ्लावर्स डालते हैं, ज्वेलरी डालते हैं, चंदन डालते हैं. ही गोज ऑन बोट राइड्स, ही गोज ऑन चैरियट राइड्स. इसका मतलब इज एंजॉयिंग लाइफ. भोग रहे है अभी मतलब एंजॉयिंग लाइफ ना, अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, राधा गोपिका, कृष्ण राम भी सीता के साथ बात रहे. जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो वहां पे तो ये लोग डरते हैं प्लेजर से. उनको किसी को सुख देना पसंद नहीं है. देखिए, सेक्स का मतलब ये नहीं कि तुम सुख ले रहे हो, तुम किसी को सुख दे भी रहे हो. तो मैं देखता हूं कि ये लोग होते हैं जो किसी को सुख देना नहीं चाहते. इसलिए वो अपने आप को बांध के रखते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे, सब हमें देंगे, हम भिक्खू बनेंगे, हम लेंगे, हम देंगे नहीं. कुछ नहीं देंगे ना किसी को. सिर्फ हम बात करेंगे और बोलेंगे बाकी लोगों को, देखो तुम अपनी पत्नी. आई नो सम गुरुजीज विल टेल मेन एंड विमेन कि अपना फैमिली छोड़ दो, सब प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा. बिकॉज त्याग करोगे तो प्रॉपर्टी कहीं तो जाना पड़ेगा. तो वो बोलेंगे कि गुरुजी को दे दो. गुरुजी को देने से, गुरुजी तो परब्रह्म है,
ब्रह्म स्वरूप है, वो हम गाते हैं ना क्या, त्वमें हो माता पिता त्वमें हो बंधु, अरे बाप रे, सब पोजीशन ले लिया, माता पिता गुरु, गुरु ही भगवान है, वही ब्रह्म है। तो बढ़िया मार्केटिंग है। Yes, obviously. मतलब मैंने देव देवता को, मैंने जब पहले जमाने में बोलते ना, पितरों को खाना नहीं दे सकते, तुम ब्राह्मणों को खाना दे दो, यही मॉडल हो गया गुरुओं का कि भैया दान करना है तो भगवान को दे दो। भगवान कौन है? गुरु जी है। प्रॉपर्टी बढ़ता रहता है, उनके तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी होते हैं, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े। तो ये अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र को बेच के अर्थशास्त्र की तरफ जाना, तो ये होता है। चल, okay, so this book, let's talk about the book at the core itself. How did it come up? And let's talk about the publisher also. Shout out to them. Thank you, HarperCollins, for letting us do this. Tell us a bit about the entire process, and very interesting way to include the illustrations, because as chapters go ahead, the illustrations kind of go with it. Yeah. So these essays were written in various publications. It's an edited version of what I've already written. और over the years मेरे ideas को मैंने लिखे थे. Right. Finally I realized इतना body of work हो गया, इसको classify करते हैं. धर्म के कितने articles हो गए, अर्थ के कितने articles हो गए, and we decided 10 each we will take, and we put it together. And then some new articles, some topics like apat dharma was not written, so I said okay, let me write on that. तो हमने उसको कर दिया. फिर मिहिर translated, my friend Mihir translates it. I have a team now. So Mihir translates it, Partho audits it, Bobby designs it. So Bobby is the designer of all my books. और फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इलस्ट्रेशंस क्या करें, तो वैसे ये बुक को ज्वाइन करने के लिए एक ही स्टाइल ऑफ इलस्ट्रेशन लेते हैं. I write illustrate a lot. मैंने कहा कि मैं वो हड़प्पा के जो सील्स होते हैं ना, तो वैसे ऐसे डिजाइन मैंने बनाए 40 वाले, और हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ ड्राइंग किया, नॉट रियली, और उसको हमने ऐसे भी पुट इट लाइक अ मोज़ेक. और ये मेरा आई वाज अ कंसल्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई हैव एन ऑब्सेशन कि लोगों को अच्छा लगता है ना, वो जैसे जब डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर और पता चलता है कितना डाउनलोड किया है, तो वैसे ही पढ़ते समय आपको पता चलेगा कितना आपने पढ़ा है. अच्छा, इतना पढ़ा है और इतना पढ़ना बाकी है. Beautiful. So that is the logic. I spent a night, kind of decoding this. Does it have a hidden meaning or something? Anyways, I am a Da Vinci Code fan also. So, I was trying to do that. But tell me something. If you show it to children, each of them have a story to tell. अगर आप एक एक इमेज देखो तो हर इमेज में कोई ना कोई कहानी है. Whether it's related to the book or not doesn't matter. But जैसे suddenly you will see a ladle. कहीं तो एक गन्ना का पिक्चर है, कहीं बेल पत्र है, कहाँ पे यंत्र है, कहाँ पे एक बाण है, कहाँ पे एक आदमी अपने हाथ सर पे टोकरी लगाया है. Because I want people to understand कि भैया हिंदुइज्म के बारे में talking without caste, जाति वर्ण के बारे में नहीं बात करोगे, दलितों के बारे में नहीं बात करोगे, तो झूठे हो आप. You are lying. सिर्फ वेदांत आत्मा की बात करके अपने आप को माया में मत फंसाओ. थोड़ा थोड़ा इंद्रजाल से निकलो और कभी कभार देखो कि हमारे संस्कृति में कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है और उससे निकलना है. मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैं बाद में पूछूंगा. बट शुगर केन से मेरे को याद आया कि यू हैव मेंशन्ड शुगर केन एंड यू हैव मेंशन्ड कामा एज इन अ चैप्टर, एंड it was so similar to Cupid. What's happening there? What is the parallel? Because I got it slightly confused. I have read this one, Olympus also, the Greek mythology. It's right here. But see, Cupid and Aphrodite are both related to loves. But Cupid is shown as a बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है जिसके हाथ में एक सोने तीर होता है, and these sharp arrows he shoots. One is of gold tipped and iron tipped. If it is gold tipped, you'll fall in love. Iron tipped is you don't fall in love. And the same idea कि ये दर्द है, प्यार दर्द है. Anybody who's experienced love, तो पता है कि जब लवर आपको रिप्लाई नहीं करता है कितना दर्द होता है. वो ब्लू टिक नहीं आया तो कितना दर्द होता है. रिप्लाई किया कि नहीं, ऑनलाइन कब है. तो वो जो दर्द है वो कामदेव काम की जो कहानियों में बहुत ही अच्छी तरीके से. In fact, there are 5 stages of love. We were a country where we have analyzed love a lot. तो इसलिए हमारे पास पूरे erotic literature है जहाँ पे बोलता है कि अगर आपको प्रेम हो गया तो ये stages से 1 चीज, 2 चीज, 4 चीज हो जाएंगे. क्या होगा? पहले आपको उसकी you will desire, then you will consume. Once you consume, you want it more and more. Then you get attached to it. फिर विरह होता है, फिर उसके लिए long होता है. तो poetry लिखा गया है. So कामदेव को
देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में मरा की बात करते हैं, जो उनको तकलीफ देता है बुद्ध को, क्योंकि वो भोग की उनको याद दिलाता है उनकी पत्नी के बारे में, उनके प्रेमिकाओं के बारे में, उनकी रानी के बारे में। तो बोलते हैं कि मरा भूत प्रेत लेके आया था, उसको मार डाल, बुद्ध ने डिस्ट्रॉय करके मारा था। यही बात हिंदुओं में कहते हैं कि कामदेव जो शिव जी को आए थे बाण मारने के लिए, तीर चलाने के लिए, उनको जला दिया गया तीसरी आंख से। लेकिन और वो भस्म लगा देते हैं शिव जी अपने ऊपर, भभूतनाथ बन जाते हैं। लेकिन हिंदुओं में देयर इज अ ट्रेंच कि भैया उससे दुनिया नहीं चलेगी, राइट, यू हैव टू रेजरेक्ट हिम। तो उसका पुनर्जन्म होता है और शिव जी शादी करते हैं। जो हम होली मनाते हैं या शिवरात्रि होता है, ये मदन उत्सव होता था, मदन का उत्सव होता था, लव। I'll go into, we'll continue this question obviously, and there's a follow-up question also. Anuja Shrikant Pawar is saying that I don't think he meant that, he just, some people make their own misconception concept and misuse it. I think she is referring to when you have mentioned that Hindu khatre mein hai wo wala cheez. I think so she is referring to that. But also Gaurav Saxena is saying that, are you saying Guru Brahma is very recent and incorrect concept? Nothing is incorrect. Yeah. You know, जैसा चोंच वैसा दाना, बस उतना ही बात है. Yeah. तो गुरु गीता इज नॉट अ 5000 year old concept. It is only 300-400 years. पद्म पुराण से आता है. Yeah. शिव जी ने कहा है, ये वो स्कंद पुराण में मिलता है. स्कंद पुराण इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ आइडियाज. बट देखिए, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, दिमाग है, तो आप पूछोगे कि देखो ये जो श्लोक है, क्या ये सत्य है या इसके भीतर एक एजेंडा है? क्योंकि ये एजेंडा से आपने एक आदमी या स्त्री को इतना बड़ा दर्जा दिया है, अबव पेरेंट्स, यू नो, पिता, माता, देवता, परब्रह्म, सबके ऊपर ये मेरा गुरुजी है. तुम इतनी पावर एक आदमी को दे रहे हो, वो तो आपका शोषण करेगा ही ना. वो बन जाता है मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जो होती है ना, क्वीन बी. yes. और आप उस मधुमक्खी के जो बी हाइव के अंदर आप भी बी बन जाते हो, विच इज ग्रेट. आप हनी मधु बना रहे हो, लेकिन आपने आपकी इंसानियत खो गए. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस. सो वी डोंट रियलाइज इट. देखिए, मेरी किताबें लिखी गई है लोगों के लिए जो सोचते हैं. ओके. जो नहीं सोचते वो उनको गुरु पसंद होता है. Oh my gosh, that was so good. I'm very clear. I'm very clear about it. I always tell people, मेरी किताबें मत पढ़ो, because they're meant for people with brains. Critical thinking होना चाहिए, critical empathy होना चाहिए. They're meant for educated people who want to learn more and more and more. जो सरस्वती के पुजारी है, ना कि गुरुजी के पुजारी है. जो सरस्वती के पुजारी है, वो गुरुजी के पास नहीं जाएंगे. वो सिर्फ गुरुजी को इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, कैटलिस्ट है, थोड़ा सिखा लेता है, कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है, but he is only a माध्यम. Okay. He is not the destination. Sir, I wanted to really ask you, what about your mentorship role? Do you get time for that? Do you mentor writers? Do you get time? I work with writers, but I don't mentor writers. I worked with quite a few writers, okay. And but mostly in my subject. I don't work on anything but mythology. Yeah. And I help people. A lot of researchers work with me, and I explain how to research and how to structure books, okay. And all that. But very select. बहुत ही carefully मैं select करता हूँ, because मेरे पास time नहीं है इतना. Right. And in terms of corporate mentorship, तो I used to mentor a lot of top guys. Okay. Now I don't mentor, but I advise one person only. I've reduced my work. Okay, so Kashish Jaffrey is asking, are religion and morals interconnected? Yes, they are. I mean, these are all vague words. Religion word is only 150 years old, if you didn't know that. 200 साल पहले religion word कोई इस्तेमाल नहीं करता था. तो शब्दों का बच के रहना चाहिए. Okay. The religion is a shortcut to understand morality. Really, morality आप खुद समझ सकते हो अगर आत्मज्ञान होगा. लेकिन ज्यादातर लोगों के पास आत्मज्ञान नहीं होता है, तो उनको गुरुजी चाहिए, कोई किताब चाहिए, कोई प्रीस्ट चाहिए. बिकॉज यू नो, अगर आपके पास अक्ल है और थोड़ा दिमाग है और सहानुभूति है, आत्मीयता है, आप फिगर आउट कर लोगे कि भैया ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. यू नो, self-reflection and analysis is far more powerful than somebody else telling you what is right and wrong. Yeah. So you have mentioned on page 153 the power of art appreciation, which is kind of, I mean, art is a very broad word, of course, but how do you feel about it? Because art appreciation, मतलब sir, school में तो मतलब out of fashion ही हो गया मुझे लगता है.
नहीं देखिए, एक दिन मैंने एक वो हिंदू खतरे वाले लोग को मिला था मैं, हाँ और जी। बोल रहे थे कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो फॉरेन म्यूजियम्स में हैं, Yeah. हमें भारत में लेके आना चाहिए। सर बहुत ही अच्छी आइडिया है, बिकॉज आई गो अब्रॉड, ऐसी इंडिया सेक्शन होता है, वहां पे बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती है। Yeah. तो फिर एक ग्रुप ने कहा कि हमारे देवी देवता वापस आने चाहिए, तो ऐसे Okay. ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ म्यूजियम? कभी गए हो वस्तु संग्रहालय में? कभी गए हो अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ? आपको पता है चोला ब्रॉन्ज और मथुरा और गांधार और होयसला कार्विंग्स के बीच में फर्क क्या है? क्या आपको पता है कि नगर टेम्पल और द्रविड़ टेम्पल में फर्क क्या है? कि आपको क्या पता है कि हम स्टेप वेल कैसे बनाते थे? तो उन्होंने कुछ नहीं पता। ऐसे तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमको मूर्ति वापस लाना है, बिकॉज इससे तुम अपना बड़प्पन दिखा रहे हो। फिर एक दूसरा ग्रुप ने कहा कि ये सब मंदिरों में होना चाहिए, दीज स्टैच्यूज शुड बी इन टेंपल। अच्छा मूर्ख बालक, सब मूर्ति मंदिर में नहीं होते हैं। देर आर मूर्ति, घर में डेकोरेशन होता है, सबकी पूजा नहीं करते हो। जिसका प्राण प्रतिष्ठा होता है उसका पूजा करते हो तुम, और वो जिसका प्राण प्रतिष्ठा होता है उसका विसर्जन भी करते हो। एवरी स्टैच्यू इज नॉट गॉड। इतना फेमस, आई मीन शॉक्ड। एंड ये अपने आप को बोलेंगे अभी ब्राह्मण फ्रॉम दिस कम्युनिटी दैट कम्युनिटी। ऐसे एक शास्त्र भी नहीं पढ़े हो तुम, बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम विल बी फॉरेनर्स, डॉलर अर्निंग सिंगापुर। आई नो द टॉप गाइज who talk much, they are based in America, Singapore। उनके बच्चे जा रहे हैं सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में, उनके बच्चों को इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आ रहे हैं हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि हिंदू खतरे में है। The third party. थर्ड पार्टी, अरे they don't have Indian passports। छोड़ो, भारत माता को पूछ रहे हैं। Goodness. So, sir, Pencil and Pen is asking, please explain Ram's eventual decision to call Sita back after having abandoned her. Well, abandoned her, he doesn't have a right to call her back first. That is why Sita says, I will not come back. Bye bye, tata, and goes away. देखिए, every woman has a right to take her own decision, and you can't treat her bad, like whatever way you like to. So, this is what Valmiki is teaching us. ना? कि राम जी ने बोला सीता को कि अभी घर आ जाओ, और सीता जी दौड़ के नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। आदर सम्मान से अगर अर्धांगिनी को नहीं रखोगे तो कैसा राम राज्य है ये? तो वाल्मीकि जी बहुत ही अच्छा काव्य लिखा है। वहां पे पहली बार यू सी विमेन्स ऑटोनॉमी, एक फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट है कि भैया बिना बोल के मुझे घर से निकाल दिया, जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे बुलाओगे। ऐसे थोड़ी ना होता है जिंदगी में, लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। तो एंड सीता जी बोलते कि टाटा बाय बाय, मैं तो अपने बच्चों को तैयार करके तुम्हारे पास भेज रही हूँ, और टाटा बाय बाय मैं जा रही हूँ। Okay. So there is an, मुझे ये प्रोटो फेमिनिज्म लगता है, जिस अर्ली डॉक्यूमेंट, वाल्मीकि जी इज रियली टॉकिंग अबाउट अ फेमिनिस्ट नैरेटिव वेयर द वुमन सेज यू कांट ट्रीट मी लाइक अ डोरमैट। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। तो राम जी को फोकस करते समय बिना, देखो बहुत लोग राम को स्टडी करते हैं विदाउट स्टडिंग सीता ना। हम लोग राम, आजकल राम की फोटो चलता है, सीता की फोटो डालते भी नहीं उसके अंदर। नो, नॉट एट ऑल ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध सत्य। ट्रू। So when you study Ram without Sita, उसे अर्ध सत्य कहते हैं। Yes. Sir, you said that on page 190, you are saying that if we flinch at the thought, we have to ask ourselves why, for it reveals hierarchies we cling on to. Why do we classify some services as Shudra and others as non-Shudra? So the earlier point which we were about to discuss. Yes, when a teacher comes, हम बोलेंगे गुरुजी है, उनके पैर छुओ। लेकिन how many of us know कि हमारे जो बाहर कचरा साफ करने वाले, उनका नाम क्या है? शायद वो उनका भी नाम पता होता है क्योंकि वो घर आते हैं, लेकिन हमारा जो सुएज सिस्टम है, वहां पे सुएज वर्कर्स हैं, हम उनसे बात नहीं करते ना। हम देखते नहीं कि भैया उनको डिसेंट इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा है। हमारे वी डोंट एंगेज विद सर्टेन प्रोफेशंस, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ठीक नहीं है। वो सर्विस कर रहे हैं, डॉक्टर सर्विस कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस कर रहा है। जैसे हम डॉक्टर और इंजीनियर को आदर देते हैं, वैसे ही जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी आपको उतना ही आदर देना चाहिए। जो कारपेंटर है, सब लोगों को आदर देना इज आत्मज्ञान। आप किसी को ऊंचा नीचा सोचते हो कि नहीं हम लोग ऐसे हैं, आप अलग अलग बर्तन होना कुछ लोगों के लिए क्यों ऐसे क्यों होता है? So you have to treat everybody with dignity, and I think that is a very difficult thing for many Indians.
हमको आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजंस हमको अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, सब जगह होता है कि अपने आप को, अपने आत्मा को संतुलन देने के लिए दे लव टू इंसल्ट अदर पीपल, लुक डाउन ऑन अदर पीपल, उन्हें छी छी बोलना। इतना वीक है ना, इतना वीक है लोग कि दे आर नॉट एबल टू, इट्स बेसिकली इसमें शक्ति का अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। जो अर्थशास्त्र है शक्ति का अंडरस्टैंडिंग, कि आप पावर को कैसे लोगों से छीनते हो, उनको नीचा दिखा के, which is... So somebody is asking about the green mask in your background. So the green mask in the background, that one is an Odia mask of Shri Ram. Okay. तो क्या है ना, उत्तर भारत के लोगों को लगता है कि पूरा भारत उनका ज्ञान उनके पास है, तो वो हमेशा राम जी को नीला रंग देते रहते हैं। Yes. लेकिन बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहां सब जगह राम को हरा रंग लगाया जाता है, उन्हें कामदेव के साथ जोड़ा जाता है। तो ये दिखाने के लिए कि भैया सब थोड़ा गंगा से उतर के कहीं और नर्मदा की तरफ आओ, गोदावरी की तरफ आओ, कावेरी की तरफ आओ, महानदी की तरफ आओ, देखो ब्रह्मपुत्र की तरफ जाओ और देखो कि भैया अलग अलग राम होते हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, नहीं तो कुपमंडुक रहोगे। It's not only about religion, sir. We North Indians love to, do that in everything. It's not only religion. It's not, just to be fair. North Indian thing is 50% of India's population is in the Gangetic Plains. Yeah. हम ये नहीं सोचते कि 50% of India's population is in the Gangetic Plains. Yeah. बाकी 50% is divided in the west, east and south. Yes. तो केवल गंगा घाटी में 50% भारतीय रहते हैं। तो naturally, this is the tragedy ना। तो हम दूसरों, धर्म नहीं होता है, धर्म का मतलब है दूसरों के बारे में सोचना। yes, yes. तो धर्म स्थापना करना है तो दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन अगर तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो तो फिर ना धर्म मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा। अब रियली काम शास्त्र में विलीन हो। On page 185 you mention collateral damage of war, because a lot of, even in Mahabharat, a lot, we always talk about what happened, but what about the collateral damage? Yes. A lot of things went down, like Bhim's son Ghatotkacha, we never talk about that. And Gandhari curses Krishna. All that is not talked about. Why? Because does it not suit us? Is that the reason? See, everybody says ना, the politician क्या बोलेगा ना, युद्ध करना है, अपने बेटे को immediately foreign countries में भेज देंगे। Yeah. लेकिन आपके बेटों को युद्ध भूमि में भेज देंगे और बोलेंगे देश के लिए तुम्हें बलिदान करना है। तो ये राजनीति का ओल्ड ट्रिक है कि हम ग्लैमराइज करते हैं युद्ध को, क्योंकि हमारा बच्चा तो नहीं मरता है ना, युद्ध से हम जमीन छीनते हैं जो अमीर होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉर इज वायलेंट, और वो वायलेंस जो स्त्री पर्व है महाभारत में या रामायण में, जब तारा विलाप करती है, मंदोदरी विलाप करती है, सुलोचना विलाप करती है, बोलती कि मेरे पति को आपने मारा है और उसका आपको श्राप लगेगा। तो राम जी को श्राप लगता है, सबको श्राप लगता है। ये श्राप दिखाने के लिए कि भैया हर जो युद्ध होता है ना, धर्म युद्ध में भी श्राप लगता है। एंड दिस इज समबडी सेड मुझे धर्म स्थापना के लिए करना है, तुम ऐसे श्राप लेने को तैयार हो क्या? फिर सब लोग का चुप हो जाता है। सर कृष्ण को भी श्राप मिला, तुम्हें कौन छोड़ेगा? You have mentioned about gender fluidity, which kind of right now in contemporary times is like, it's ridiculous. I mean, we have no idea how to deal with it, to be honest. And we may make a lot of laws and etc., but actually, I don't know if we, kind of understand. अगर आत्मज्ञान होगा तो बहुत आसान है। Okay. जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है और जो is expecting, मैं बोलता हूँ outsource intelligence to other people, उनको समझ में नहीं आता है। बट जिसके पास आत्मज्ञान है वो बोलेगा देख, इफ यू थिंक यू आर अ मैन, यू आर अ मैन। कृष्ण ने कहा शिखंडी को कि तुम्हें लगता है तुम पुरुष हो तो तुम पुरुष हो। भीष्म ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता। ऐसे तुम्हें कौन पूछ रहा है? उसे पूछो ना, उसका इच्छा जो है। तो यू हैव नो अधिकार ऑन समबडी एल्स टू टेल कि तुम कौन पुरुष, कौन स्त्री, कौन किससे प्यार करना चाहिए, कौन किससे शादी करना चाहता है। तुम अपना अहंकार को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो? दूसरों को लेट अदर, धर्म इज व्हाट, दूसरों के बारे में सोचना।
उनके चार, उनको जो चाहिए. So if somebody thinks that, I'm a gay man and I love a man, a lesbian says I fall in love with a woman, और somebody transgender बोलेगा कि ये शरीर जो पुरुष का शरीर है मुझे पसंद नहीं है, मेरा शरीर, something is wrong, मुझे स्त्री बनना है, या स्त्री है मैं पुरुष बनना चाहती हूँ. वो उनकी यात्रा है, तुम्हारी यात्रा नहीं है. तो धर्म स्थापना मतलब तुम उनकी यात्रा को सपोर्ट करो, ना कि तुम उन्हें बांध के अपने हिसाब से जीवित रखो, which is very foolish, but क्या करें लोगों को. Somebody is asking, are most mythological stories only metaphors to propagate an idea? Yes. Okay, great. I think that answers your question, Gaurav. We have addressed most of the questions. And in the beginning of the book, you talk about, hormones. Yes. that was quite interesting. I was like, what? Indian philosophy padhne ke liye na, we give a lot of importance to the body. Yeah. Right? You won't see it anywhere else in the world. Everywhere else in the world, जब philosophy पढ़ते हो तो बाहरी दुनिया के बारे में बात करते हैं. लेकिन हम भारत में हम इंद्रियों के बारे में बात करेंगे. सेंस ऑर्गन्स, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, चित्त, हार्ट, हेड. वी आर कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी. एक मॉडल बनाते हैं कि शरीर का, कि शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, तो ज्ञान इंद्रिया से आता है. सो वी आर वेरी अवेयर कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी. ये अवेयरनेस अभी न्यूरो साइंस में आ गया है कि देखो दुनिया कैसे भी हो, आपके मन में व्हेन यू आर हैप्पी रियली सम हार्मोन्स हैव बीन रिलीज्ड, व्हेन यू आर अनहैप्पी सम हार्मोन्स हैव बीन रिलीज्ड. तो ये हैप्पीनेस जो बोल रहे हैं वो रियली हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. तो जब आप कुछ अचीव करते हो, युद्ध में जीतते हो, या हिंदू खतरे में है चिल्लाते हो, तो डोपामीन रिलीज हो रहा है, बस उतना ही है. तो अर्थशास्त्र का डोपामीन के साथ रिलेशनशिप है. धर्मशास्त्र, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, मन को बहुत अच्छा लगता है कि वी हैव हेल्प्ड अदर पीपल, सेरोटोनिन रिलीज होता है. जब आपको प्रेम हो जाता है, किसी को आप बहुत प्यार करते हो, इंटीमेसी हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. जब आप सब दर्द से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. तो ये केमिकल्स बेसिकली, मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो बोला अरे ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जैसे है. इनका जब परफेक्ट बैलेंस होता है तो लाइफ में हैप्पीनेस होता है. कि कभी कमाना पड़ता है, कभी उसका भोग लेना पड़ता है, कभी दान करना पड़ता है, कभी मुक्ति प्राप्त करना है. एंड दैट इज व्हाट आई रियलाइज. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि न्यूरो साइंस is talking about, otherwise what we do, हम chemicals लेते हैं ना जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, या तो गांजा लेते हैं या तो शराब लेते हैं. these are all chemicals. निकोटीन लेते हैं, कॉफी लेते हैं. these are chemicals to stimulate, artificially अपने आप को अच्छा करने के लिए. तो ये केमिकल्स के बारे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और देखा कि देखो शास्त्र भी रिलीज कर, they didn't understand these words, but they are going in that direction कि भैया सिर्फ कमाने से आपको सुख नहीं मिलेगा, केवल एंजॉय करने से सुख नहीं मिलेगा, केवल दान करने से सुख नहीं मिलेगा, केवल भागने से, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के भाग के जंगल में अपने आप को गुरु बना के आप सुख नहीं प्राप्त करोगे. तो ऑल फोर आर इंपॉर्टेंट. जनरेशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, enjoyment of wealth, outgrowing wealth, everything is important. Goodness, I'm so happy with this book, truly, because I was worried about myself, because I was kind of trying to do everything, but I was like, am I maintaining a balance? So I'll try harder, of course, to maintain a balance. And that answers Akash's question also, which is bigger, dharma, arth or kam? That also answers that question. Yeah. See, there is nothing bigger. And first ask yourself the question, why do you want to know what is bigger? Yes. Akash. That is a very important question. Na? Hamesha, which God is bigger, which goddess is bigger, yes. Which country is bigger. Yes. It shows inadequacy. कुछ तो गड़बड़ है. Akash, you have. मेरा घर बड़ा है, मेरा गाड़ी बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस बड़ा है, मेरा जात बड़ा है, मेरा कौम बड़ा है. ये अहंकार के चिन्ह है. पहले बिना काम शास्त्र को समझ के आप अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हो, बिना अर्थशास्त्र को समझ के आप धर्मशास्त्र के बारे में बात कर रहे हो, मोक्ष शास्त्र के बारे में बात करते हो, लेकिन काम शास्त्र का ज्ञान ही. शंकराचार्य को उभया भारती ने कहा था कि देखो तुमने कभी भोग नहीं लिया है, एंजॉय नहीं किया लाइफ, तुम क्या सन्यासी हो. उभया भारती ने 1200 साल पहले मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि भोग करो,
जब तक भोग नहीं करोगे तब तक तुम्हें संन्यास का ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो आइडिया है कि देखो सबका वैल्यू है लाइफ में, गेरुआ वस्त्र बनने से आप किसी से सुपीरियर नहीं बन जाते। एक बार मैंने किसी के घर गया था और एक गुरुजी वहां बैठे थे, सब उनके सोफा सेट में गुरुजी बैठे थे, सब नीचे बैठ रहे थे। तो मुझे हंसी आई, गुरु की उनके पैर सब अपने आप को, वी आर सो हम्बल, वी आर सर्विंग गुरुजी, हम उनका सेवा कर रहे हैं, ऐसे क्या ड्रामा चालू है, ये तो नाटक चालू है। मैं जाके उसके बगल में बैठ गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बोला थैंक गॉड I can now talk to you as a normal person। इसके साथ मुझे डर लगता है बिकॉज इन्होंने बहुत ही क्लेवर तरीके से मेरी बात नहीं सुनते वो लोग। वो लोग मुझे एक टोटम बना दिया है, और टोटम बना के उनको लगता है कि वो एक खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे साथ। वेदांत का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो वी हैड अ गुड टाइम, हम खाना खाए, बात किए, एंजॉयड ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल दैट। और बाकी लोग बोल रहे थे गुरुजी अब वार्तालाप कर रहे हैं। Goodness. Man, what a funny thing. Yeah. And my final question to you, and this has been a wonderful session. And my final question, have you ever had talks about your books getting into curriculum or something? Does it happen? Will it happen? I know that many schools have privately started. My children's books have become part of the curriculum. I know literature students have been. I get to know from, like, many years ago, I went to the English literature department and I realized Pregnant King was a novel which they were studying in gender studies. Yeah. Then I saw Pashu and Boy Who Fought and Girl Who Chose has become part of children's education. Yeah. So there is a movement. Young individual principals in schools and teachers are taking the initiative. लोग डरते हैं ना इन बातों से कि अरे लोग बोलेंगे कि आप बेच रहे हो कॉन्सेप्ट को, या किस गुरु को आप फॉलो कर रहे हो. सो माय बुक्स आर वेरी एग्नोस्टिक. आई डोंट गिव anybody particular importance. So but have they read them to know that? I doubt it. So that was I was worried because having one-off literature festivals, everybody loves it, when you go to their campuses, everybody loves it. Devdutt sir has come. खरीदा हो कि नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, I will come and check your library. Oh, wonderful. Because that is what makes the difference. ना कौन पढ़ता है? I said, मुझे तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है. Yes. उससे कोई बड़ी बात नहीं है, because I know what I'm saying is of great value to people. So I don't need you to endorse it. Yes. I would rather you read my book and get value out of it than telling me how great I am to tell you about the book. उससे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलता नहीं है. वो सब क्लैपिंग एंड हेलो और वो अवार्ड्स देते हैं. लाइक भैया बुक खरीदो, परसेंटेज आ रहा है मेरे पास. Yes. That is good enough. But I hope you don't just buy the book, but you actually open the book and read it. Yeah. And audio book सुनो. If you can't read it, get an audio book, or थोड़ा दिमाग को expand करो. It should be guys, you have to read this one. और जिनको मतलब वैसे तो दोनों में पढ़ो, मेरे हिसाब से तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ो, बट लीव अ रिव्यू ऑन Amazon, वो तो मतलब करना ही होता है, वो तो गिवन है. Also, thank you so much, Devdutt sir. I won't tell you how great you are, because that is a given. But I really appreciated the book, and it was like the last 2 days have been like so much fun, and I was like all my concepts were quashed, and I was like back to square one. So I loved it. That is what I can say. Thank you so much. Thank you for doing this. Thank you so much. Bye-bye.